Welcome back to the Desi Hustle. I'm your host Tamanna, and today we have with us a truly inspiring individual who personifies resilience, hope, and the power of transformation. Our guest is Kaushik Rai, the founder of A Right. Joy Foundation, a rehabilitation center in Guwahati that's changing lives one person at a time. Kaushik's story Right. is one of profound personal transformation. Having walked the difficult path of addiction himself, he emerged stronger after 7 years of being sober and to dedicated his life to helping others find their way back to health and dignity. At the Joy Foundation, he's created more than just a rehab center. It's a sanctuary of hope for young men to rebuild their lives through a holistic routine of meditation, prayer, reading, writing, and self reflection. What makes Kaushik's approach unique is his deep personal investment in each resident's journey. As he beautifully puts it, he is on a mission to guide and motivate each one of them. His vision extends beyond immediate recovery. He's committed to helping these young men rediscover their self worth and create futures that they can be proud of. In today's episode, we'll dive deep into the complex world of addiction, exploring the distinct challenges faced by those struggling with alcohol versus drug dependency. And Kaushik will also share his transformative journey from addiction to recovery. Meanwhile, we'll also discuss the crucial role of societal awareness in addressing addiction. More than that, we'll also get an insider's perspective on the challenges and rewards of running a rehab center. This conversation promises to be both enlightening and inspiring, offering valuable insights for anyone touched by addiction, whether personally or through loved ones. Stay with us as we explore this important topic on the Desi Hustle. Welcome, Kaushik. Hi. Hello. Thank you. Okay, Sure. let's start with very basic questions. So growing up in Guwahati, during your childhood, what was Mhm. life like? What memories stand out for you? See, my childhood was very good. It was great, I should say, because I was brought up in a joint family. So it was nothing. No, there was. I cannot say that my childhood was dark. That's why I came into addiction. It was beautiful. My entire childhood, I have lots of memories. Good memories with my brothers, with my sisters, with my siblings. बहुत अच्छा था childhood में basically. Uh, but क्या होता है ना, what happens now I realize when I have studied about addiction, when I tried to understand what addiction is and what addiction personality is, अभी मुझे लगता है ना मेरा childhood में there was a kind of voidness inside me, within me, मैं सबके साथ रहता था मैं सबके साथ रहता था लेकिन I always felt that something was not there with me. I was never satisfied with my life. इवन दो सब कुछ अच्छा था नाउ व्हेन आई सी बैक अच्छा स्कूल में पढ़ाई किया लिटिल फ्लावर में पढ़ा था मैं मेरा स्कूलिंग अच्छा हुआ है मेरे मम्मी माय मदर शी इज अ हाउसवाइफ शी वाज वेरी केयरिंग ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कजिन्स सब केयरिंग थे भैया हम लोग एक साथ ही खेलते थे तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग सब एक ही जगह से बने हुए थे इन द सेम फैमिली तो इट डिडंट अफेक्ट द एंटायर फैमिली True. सबके साथ वैसा नहीं हुआ इट ओनली हैपेंड विद मी now I realize why it happened with me because I was being an addict, there's a personality, addictive personality. So वो personality मेरे अंदर में था, तो वो इससे क्या होता है, you are not satisfied with what you have. So childhood was great. So this way, आज जब देखता हूँ कि क्या हुआ था, what went wrong मेरा childhood में, कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मेरा abuse हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ. Everything was fine. Every family carries its own burden, right? तो सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था फैमिली में बट ऐसा नहीं था कि दैट अफेक्टेड मी ओनली मी अगर कुछ था तो सबको अफेक्ट करता और मोस्ट ऑफ द यू नो Correct. सिबलिंग्स जितना भी हम लोग थे वहां पे घर में माय कजिन्स माय सिस्टर सबको अफेक्ट करता या ज्यादातर को अफेक्ट करता सिर्फ मुझे ही अफेक्ट हुआ बिकॉज आई हैड दैट थिंग इन मी वही है Interesting. So, having said that, you had a beautiful childhood, and good memories. So, या when वेरी गुड did you first encounter this addiction in your environment? And या or would you say it was common amongst youth in Guwahati then?
See, then तो I don't know because uh, ये ऐसा नहीं है कि अभी तक तो every next door there is a problem, but every next door there is this problem. कोई ना कोई आपका एडिक्शन हो या अल्कोहलिज्म से फेस भुगत ही रहा है. Everybody, every next door you find one family who is suffering from this problem. So it was not like I inflicted it from something, कोई बाहर का environment ने मुझे ये affect किया. Okay, yeah, there were friends, peer pressure रहता है. You get to watch it from school and everything, you know. But the thing is, you need to understand the concept of Right. addiction first. You know, addiction क्या है वो जानना बहुत जरूरी है. Because जैसा कि मैंने पहले बोला, we मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ. We had some neighborhood friends also. They didn't come, they didn't fall into this trap of addiction. It was me. It was me among 5 or 7 or 10, 10 बंदे में से मुझे वो पकड़ लिया because मेरा इंटरेस्ट था. I was interested, more inclined towards negative things. That's why जो मेरे घर या मेरा घर के पास में एक दो थे जो who were addicted. तो वो लोग तो ऐसा नहीं है कि they came and they gave me the bottle. अब they you know उन लोग से देखा मैंने सीखा. वो मुझे था, मेरे अंदर में था कि मेरा क्यूरियोसिटी कि वो सीखने का. So that was up to me. Right. I think that's Interesting. So, uh, again, let's go back to, that thing that yeah. first time कब realize हुआ that, you are addicted. ये गुड क्वेश्चन. ये बहुत टाइम बाद, यू नो ये क्या होता है ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. कब रियलाइज हुआ? एक्चुअली क्या होता है ना, वी डोंट रियलाइज, until the sad part is, the irony of this thing is, you don't realize until and unless you are left with nothing in your life. बहुत लेट हो जाता है जब तक आपको रियलाइजेशन आता है. बिकॉज एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स, दे देयर आर सर्टेन स्टेजेस लाइक कंटेम्पलेटिंग, प्री कंटेम्पलेटिंग स्टेजेस होता है. तो मेरा जब लाइफ से, व्हेन आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर. आई यूज्ड टू प्ले फॉर द नॉर्थ ईस्ट जोन. I was working for a very good company after I completed my masters. So till then everything was okay. Okay, everything was okay, everything was normal. I used to drink, जो social drinking होता है मैं करता था. But क्या होता था ना, I didn't realize at that point of time that the pattern which I was drinking or using was not the same that my friends used to do. मैं जब भी करता था, I used to drink a lot. So I realized it only when I lost everything, my job, when my family was, totally खत्म. एक फैमिली क्या होता है, एक अल्कोहलिक फैमिली, बहुत, मॉर्निंग से लेकर रात तक देयर इज अ घुटन इन दैट फैमिली. योर मदर इज नॉट टॉकिंग टू यू. योर एंटायर रिलेटिव्स आर नॉट टॉकिंग विथ यू. यू आर लेफ्ट विथ नो होप. यू हैव नो जॉब. सो तब जब आया मेरे वो स्टेज जब आया, इट वाज वे बैक इन 2016 और 17, तब मैंने रियलाइज किया, या आई रियली हैव इशू, आई रियली हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वो सिर्फ रियलाइजेशन ही आया था 2016-17 में. बट टू चेंज इट, वो और 2 साल लग गया. टू एक्सेप्ट इट एंड चेंज इट, वो और 2 साल लग गया. और घर वालों को भी ऐसा नहीं लगा था कि ही हैज एनी प्रॉब्लम. बिकॉज सब कोई नशा करता है, सब कोई ड्रिंक करता है, सोशली ड्रिंक करता ही है. सो ड्रिंकिंग इज नॉट अ टैबू और इट इज नॉट बैंड, राइट? सो इट इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर. ज्यादा पीता है. तो समझने में मुझे बहुत लेट हो गया. 2016, 15, 16 में शायद, या आई रियलाइज दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम. बट till that time I didn't realize that I needed some help. मैं खुद से कर लूंगा. So, how did you try to help अपने आप को before you Yeah. realize that you need external help? And how did you go about that entire process? See, as I told you, I was working with HDFC, okay, as a financial manager. So Right. मेरा जब जॉब चला गया, so when I lost my job
and I was jobless for say another 2 3 years. Okay, because nobody is going to take an alcoholic or an addict, right? तो Correct. उसके बाद या सो उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि इतना क्यों पीते हो, एवरीबडी ट्राई टू नो, जो घर वाला करता है, जो रिलेटिव करता है, दे कम एंड दे एडवाइस यू, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो. आई ट्राइड एवरीथिंग. I tried prayers, I tried going to the church, I tried going to the temple, religious places. I tried visiting the doctors. So ये सब कुछ करके देख लिया, but nothing was helping me. So जब मैं रिहैब में आया, to way back in 2018, so at that point of time it clicked. It clicked that what am I doing with my life? You know, ये कैसे आता है? एक दिन में नहीं होता ये. You need to analyze your Right. entire journey, entire life, from your childhood. मेरा childhood कैसा था? I was sent to a very good school. I had opportunities. Uh, I did my masters. I had some goals. I had some dreams way back when I was a child. मुझे I wanted to be in a corporate world. ठीक है, मुझे एक गाड़ी चाहिए था, घर चाहिए था, all those things. तो मैंने वो एनालाइज किया एंड मैंने देखा कि मैं आज का दिन कहाँ हूँ. यू नो ये सब मैं चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ आज का दिन. तो वो जो मैंने ड्रीम देखा था, क्या वो डू आई रियली am I going in the right direction to achieve those dreams? No? या फिर मैं बैठे बैठे, वो होता है ना, एक मुगनी लाल का हसीन सपने बोल के एक सीरियल आता था, तो एम आई जस्ट ड्रीमिंग. सुबह उठ के क्या चाहिए मुझे? नशा चाहिए. रात तक मुझे नशा चाहिए. सोशलाइज कर दे रहा हूँ, काम कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं सपने बूंद रहा हूँ कि आई वांट टू बी इन अ गुड प्लेस इन द सोसाइटी. आई नीड मनी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है मेरे लिए. सो व्हेन आई वेंट टू रिहैब, it was not, I didn't go willingly. As I told you, I was still not ready to accept it, that I have a problem. Even though I realized that I had a problem, but I thought that I can help it, I can manage it on my own. ठीक है तमन्ना. उसके बाद Right. जब रियलाइज में आया, जब मैं रिहैब में घुसा, then I realized that what a big issue I am facing. You know, मैं आज का दिन कहाँ हूँ? That realization, that point of realization needs to come from within. कोई रिहैब, ये हो, एजे फाउंडेशन हो या कोई भी रिहैब, ये आपको रियलाइजेशन नहीं करवा नहीं सकता है. दे कैन गाइड यू, दे कैन गाइड यू, ये करो वो करो, True. बट दैट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, या दैट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, ये अपने आप से अंदर आना पड़ेगा. व्हेन यू डू अ ट्रू ऑनेस्ट इन्वेंटरी ऑफ योरसेल्फ, यू नो you have to love yourself first. So I love myself. I started to love myself. I saw that, yeah, if I love myself, I want all the good things for me. And if I need all the True. good things for me, ये बैठे बैठे होगा नहीं. What I need a good house. I need my mom to be happy. I need my future wife to be happy. I need my children to be happy, right? वो सब आएगा कहाँ से? वो सब आएगा कहाँ से? ये तो काम करने से आएगा. If I just keep on doing nothing and सिर्फ सोचता रहूंगा, सुबह से लेकर रात तक नशा करता रहूंगा, आएगा कहाँ से? And after 10 years, do I want to see myself? आज तो ठीक है कर रहा हूँ, 7 years हो गया ना, so 30 31 years I cleaned up. So उस टाइम, आज से 10 साल बाद, 30 years के बाद, 40 years में मैं कहाँ हूँ? My mom will be not there, my sister will be not there, my support system will not be there. जो आज था उस टाइम में था, आफ्टर 10 years वो नहीं रहेगा मेरे पास. तो मेरे पास कोई चांस नहीं रहेगा. अगर कुछ चांस है तो अभी करना. So that was the day I realized that no, I have to come out. Anyhow, anyways, I accepted everything. जो गलतियां मैंने किया है. एंड सबसे बड़ा बात है, एक बात बता रहा हूँ, तो वरना कि क्या होता है ना, एडिक्ट लोग, वो ऑलवेज ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलियर्स. So you have to stop that. You have to stop that, because it's you who are making the choices, you are making the decision. So you have to take the responsibility of whatever is happening with your life. So I started to take responsibility of all the wrong choices I have made. And I accepted that, yeah, I need a problem, and it's a very serious, issue, and I need to change. I started to love myself.
I am inspired. So, walk us, through your the darkest period. Like, I mean, technically darkest nahi hai jab realization ho gaya that you love yourself and you need to do better. So, what did your recovery look like? See, the program that I'm following right now, I'm always gratitude to this program, 12 step program. So when I see my life was all, the life will never change. You know, it's not like that you have stopped using and drastically your life is going to change. You know, at one day ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं? तो you need to work. ऐसा नहीं है कि मैंने चलो मैं नशा करना छोड़ दिया and now I will sit back and I will relax. You know, हाँ मैंने नशा करना छोड़ दिया बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने एंड आई डोंट डू एनीथिंग तब तो आपका पास पैसा नहीं आएगा ना ग्रोथ नहीं आएगा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी बट ग्रोथ व्हाट इज योर ग्रोथ ग्रोथ मीन्स यू हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली मेंटली यू हैव टू ग्रो बिकॉज एक यूजिंग में एक एडिक्ट या एक इंसान कैसा होता है ही इज वेरी इरिटेटिंग वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड राइट ही उसको दिखाई नहीं देता है दुनिया ही इज आउट ऑफ द रियलिटी बट व्हेन यू कम इनटू रिकवरी Okay, when you to come into recovery, you need to be very clear. I was very clear that nothing is going to happen overnight and nobody is going to serve me in a platter. I have to work hard. I have to work for my thing because मैंने नशा छोड़ दिया अब सब मुझे वाहवाही देगा यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट तुमने नशा छोड़ा है मैंने नशा छोड़ा है आई ट्राई टू स्टेप आउट ऑफ दैट लाइफ बिकॉज आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग बेटर फॉर माई सेल्फ ये मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा आई एम नॉट डूइंग एनी एहसान ऑन समबडी ना ये मैं अपने ऊपर ही एहसान कर रहा हूँ आज मैं इस जगह में बैठा हुआ हूँ टुडे माय फैमिली मेंबर इज सेफ दे आर हैप्पी तो वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी सो लाइक यू नो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा हम लोग आईसीयू मशीन में देखते हैं ना आईसीयू रूम में ये जो ईसीजी मशीन होता है ऐसे ऐसे करके चलता रहता है यू नो तो वो क्या होता है ना दैट मीन्स यू आर अलाइव once the line is straight you are dead. So I have accepted that life will always be zigzag. You know, ये ऐसा रहेगा अगर स्ट्रेट हो जाएगा इधर आई एम पागल इधर में आई लाइफ खत्म हो गया सो अभी भी मेरा लाइफ में अप्स एंड डाउन रहता है बट नाउ विथ माई कॉन्शियस माइंड आई कैन फेस एवरीथिंग नो मुझे इतना पता है कि इफ आई एम कॉन्शियस आई कैन फेस एनीथिंग दिस टू सेल पास आज एक प्रॉब्लम आएगा दिस टू सेल पास कल खत्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम तो वैसे करके मैं एवरी डे आई टेक इट वन डे एट अ टाइम दूर का क्या होगा आई डोंट थिंक आज दिन कैसे निकलना है आज का जो प्रॉब्लम है विदाउट सब्सटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एलियन सब्सटेंस आई एम गोइंग टू हेल्प माई सेल्फ आई एम गोइंग टू ओवरकम दिस थिंग्स तो वैसे करके मेरा चल रहा है सो डार्केस्ट फेज इफ आई विल टेल was that time when I was in my using days, right? Because I was hopeless. There was no hope in my life. I used to see my brothers, my sisters, you know, my cousins, they are working so good. They are doing so good in their life. And me being 28, 29 years of age, you know, I was just sitting back, lying down in my bed, nothing, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है. सुबह से लेके रात तक सिर्फ मेरा एक ही काम है, how to get the, you know, जुगाड़ कैसे करूं. And that was the darkest phase. It was like, you know, I cannot explain it with words. दैट फीलिंग वो घुटन क्या होता है ना तुम जिंदा हो लेकिन यू आर नॉट जिंदा यू नो यू आर नॉट लाइफ यू आर जस्ट डेड एक आत्मा सिर्फ आपका कब यू नो योर सोल वांट्स टू लीव यू यू नो ही इज फेड अप अभी छोड़ दो मुझे ऐसा टाइम हो जाता है एक टाइम यू आर सो हेल्प यू बिकम सो हेल्पलेस सो दैट वाज द डार्क फेज ऑफ माय लाइफ एंड when you know you see your mother crying you know and you want to help her but कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यू नो आपको पता नहीं है आप कैसे छोड़ोगे वो चीज एंड समवेयर योर माइंड ऑल्सो योर बॉडी ऑल्सो इज नॉट लेटिंग यू कम आउट फ्रॉम दैट यू नो बहुत सा क्रेविंग्स होता है विड्रॉल्स होता है देयर आर विड्रॉवल देयर आर मेंटल क्रेविंग देयर आर ऑब्सेशन so all these things addiction is a very big subject actually so ये सब चीज आपको एक जकड़ पे रखता है you know you keep it in a grip you in a grip and it doesn't let you go out easily. But that was the darkest phase when you see your mother crying, your sister crying, your entire family, you know, just
वरीड अबाउट यू। तो एक इंसान का लाइफ में आई थिंक फॉर मी उससे डार्केस्ट फेज हो नहीं सकता है। That sounds really dark. हाँ, was Uh, Moving on, like, you just spoke about, alcohol and drug addiction. So, dono हम्म, mein, like, what is the difference, like, in terms of, uh, addiction maybe, and in हम्म, terms of recovery also? What is the difference between alcohol and drug addiction? okay, this is a very good question. Actually, what happens now? Alcohol is easily available and it is accepted by the society, right? It is easily available. Okay. It is accepted by the society in every social gatherings. Nowadays, you can see alcohol is there. So, but the thing is, people don't understand or realize कि इसको कब you can call it an addiction. नो कब आप बोल सकते हो कि आपको अल्कोहल का डिपेंडेंसी हो जाता है, यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिकॉज सब कोई कर रहा है, एवरीबडी इज डूइंग इन द सोसाइटी। कोई है, जैसे कि मैंने बोला व्हेन आई वाज डूइंग इट इन अ सोशल मैनर, मुझे भी रियलाइजेशन नहीं हुआ था दैट आई एम एन एडिक्ट और आई एम एन अल्कोहलिक, बिकॉज मुझे लगता था कि या चलो मैं ज्यादा करता हूँ, अगर कोई 2 पैक में कर रहा है मैं 4 पैक में कर रहा हूँ। Correct. ओके, सो वो मुझे पता नहीं था उस टाइम में। बट अभी भी सोसाइटी को क्या होता है ना, पेरेंट्स यूजुअली क्या होता है, दे कैनॉट सी, कैनॉट फिगर आउट, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी तक स्कूल्स में हुआ नहीं है। इंडिया में तो हम लोग के एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस एकदम नील बराबर है। सो दे क्या होता है कि पीपल, पेरेंट्स लोग क्या बोलता है कि अरे वो तो सिर्फ दारू पीता है, वो तो एडिक्ट नहीं। अभी भी मेरे पास जो पेशेंट, कभी कोई पेशेंट आता है, एल्कोहलिक्स जब आता है ना, वो लोग बोलता है कि इन लोग को एडिक्ट से अलग करके रखो, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग ड्रग्स, देर से वो सिर्फ दारू ले रहा है। Correct. मैं आपको बता रहा हूँ, अल्कोहल इज मोस्ट रैम्पेंट इन द सोसाइटी। ये सबसे भयानक है। सबसे ज्यादा फेटल हिस्ट्री आपको अगर मिलेगा, फेटलिटी रेट, तो इट्स फ्रॉम अल्कोहल। बट ये जैसे Alcohol. कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, पीपल कैन नॉट डिफरेंशिएट अनटिल एंड अनलेस इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत टाइम लगता है, एंड देयर आर सम सर्टेन इश्यूज लाइक थिंग्स, फैक्टर्स व्हिच मैटर्स इज अल्कोहल का, कोई सब सब्सटेंस का एडिक्टिव नेचर अलग होता है। नाउ इफ यू गो हेरोइन, ब्राउन शुगर, द स्ट्रीट ड्रग्स, उन लोग का एडिक्टिव नेचर बहुत हाई होता है। विद इन 3 days यू आर इन द ग्रिप। 3 दिन लगेगा, यू आर गॉन, यू आर डन। बट टू बी एन अल्कोहलिक इट टेक्स टाइम, 6 months, 7 months, 8 months, competitive drinking, तो वो टाइम लगता है, थोड़ा वो टाइम लगता है। बट ड्रग एडिक्शन जो है ना, एंड ड्रग इज एनीवेज इट्स बैन एंड इट इज, इट्स लुक लाइक या ड्रग्स है भाई ये, इट्स सब पॉइजन है। सोसाइटी ड्रग्स को एक अलग नजरिए से देखता है, नॉट 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 ओनली इन इंडिया, एंटायर Hmm. वर्ल्ड। ड्रग्स एकदम खराब चीज है ये, बट ड्रग्स, इट इज नॉट द सब्सटेंस विच मैटर्स। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस मैटर नहीं करता, इट इज द पैटर्न, इट इज द वे दैट यू आर यूजिंग द सब्सटेंस। राइट, अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैंने रेप नहीं किया है, मैंने मॉलेस्ट किया है, बात एक ही है मेरे लिए। इफ समबडी सेज मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने रॉबरी True. किया है, मैंने डकैती किया है, तो चीज एक ही है, गलत दोनों है। इट्स नॉट द सब्सटेंस दैट यू शुड ब्लेम, नो, सब्सटेंस में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो 100%, तो 95% लोग दारू पी रहे हैं आजकल, बट एवरीबडी इज नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम। इट इज दैट पर्सन, उसके अंदर में ये एडिक्शन का प्रॉब्लम है कि नहीं, वो कैसे करके यूज कर रहा है, तो पैटर्न, उसका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मैटर्स। तो ये कोई सब्सटेंस नहीं है कि मेरा लड़का गांजा पीता है तो वो एडिक्ट कैसे हो गया, मेरा लड़का ये करता है, क्या कर रहा है, इट डजेंट मैटर। यू सी व्हाट योर सन इज गोइंग थ्रू, हाउ इज हिज लाइफ, तो वो देखना जरूरी है। एंड इट इज द एडिक्टिव नेचर ऑल्सो, क्योंकि ड्रग बहुत जल्दी एडिक्टिव है, इट टेक्स यू अंडर इट्स कंट्रोल। अल्कोहल टेक्स टाइम, वीट टेक्स मोर टाइम, और सबका विड्रॉवल स्टेजेस भी अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, इट इज वैसा करके होता है जी।
So, is there any unique crisis situation that alcoholics face versus what drug addicts face, and उन दोनों के the kind of support that both of these people need, the category alcoholics and drug addicts, are they different? Like what kind of support both of these people need? सी क्राइसिस का अगर मैं बात करूँ ना, तो क्राइसिस या क्राइसिस दोनों अलग अलग, थोड़ा थोड़ा फेस अलग होता है. लाइक एज आई टोल्ड यू, यू गेट अल्कोहल एवरीवेयर. You can, people will not arrest you when you go to a wine shop. If you go to a liquor shop and you buy, you are not arrested. आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगा. So वहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है. ड्रग्स तो आपको तो वो स्मगल करना पड़ता है. इट इज डन इन इलीगल वे, राइट. सो वहाँ पे आप अरेस्ट हो जाओगे. आपके ऊपर में, अगर आपको ड्रग एडिक्ट को पकड़ लेगा तो उसके ऊपर में केस हो जाएगा, एनडीपीएस केस आ जाएगा. अगर आप अल्कोहल पी के पकड़े जाओगे, आपको ऊपर एनडीपीएस केस नहीं आएगा. यू विल, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सेंड टू वन नाइट कस्टडी, अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो बेसिक डिफरेंस इसी में आता है. क्राइसिस, वो एक क्राइसिस आ जाता है. यू गेट इट अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यू गेट alcohol easily in the market. Drugs, yeah, you cannot have it in the open, कोई open market है नहीं. Second crisis अगर आप हमको, if I say, is the, your physical crisis. you know Alcohol से सबसे ज्यादा crisis होता है physical. There are three types of crisis: mental, physical and spiritual crisis. Mental crisis दोनों का same रहता है. Mental, you will be obsessed, both alcoholic or be it an addict. From morning to night, you will only think about your substance. आप पार्टी में जा रहे हो, इफ यू आर आस्क एन एडिक्ट, आप कभी पूछोगे कि कोई भी एडिक्ट या अल्कोहलिक को पूछोगे, चलो लेट्स गो टू अ पिकनिक, एंड यू टेल हिम दैट देयर इज नो अल्कोहल, तो वो नहीं आएगा आपके साथ, और ही विल फील बोर्ड. सो दैट ऑब्सेशन रिमेन्स द सेम बोथ विद एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक. सो देयर इज नो, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है. मेंटल ऑब्सेशन दोनों में रहेगा. फिजिकली, इफ यू आर आस्क मी, फिजिकल क्राइसिस आ जाएगा कि अल्कोहलिक का आपका किडनी फेलियर, ये सब जो बीमारी हो जाता है, किडनी फेलियर होगा आपका, हार्ट अटैक हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, सीरोसिस हो सकता है. सो दीज आर द क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस. एंड अगर आप एडिक्ट का बताओ, अगर मैं बताऊंगा तो आपको एचआईवी हो सकता है, एसटीडी, एनी काइंड ऑफ एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, बी, ओवरडोज, ये सब हो सकता है. स्पिरिचुअल क्राइसिस दोनों दोनों का सेम रहता है. यू आर स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, यू डोंट लव योरसेल्फ, you can sacrifice anything for your substance. I have seen this. एक छोटा सा स्टोरी, जस्ट स्मॉल स्टोरी. देयर वाज अ गाय, एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूँ, he's from Guwahati itself. He came to me one day. He was my patient only. He came to me one day. He asked me money. मेरा घर में मेरा बच्चा को, you know, कुछ लैक्टोजन ने क्या बच्चा को खिलाता है, आई नीड मनी फॉर दैट. तो मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं Okay. दूंगा, यू कम टू मी, आई, मैं तुमको लेके जाऊंगा दुकान में, एंड आई बाई इट फॉर यू, बिकॉज हाथ में पैसा नहीं दूंगा. फार्मेसी में लेके गया, उसको खरीद के दिया. शाम को मैं वो फार्मेसी में फिर से मेडिसिन लेने गया. वो फार्मेसी मुझे बोल रहा है कि वो लड़का उसको आधा दाम में मुझे बेच के चला गया फॉर हिज सब्सटेंस. सो दिस काइंड ऑफ, स्पिरिचुअल bankrupts you gather when you are into addiction. So there is no different kind of crisis that you are facing. Crisis is the same. It is which stage you are in. You are in the initial stages of addiction or Correct. alcoholism, और कौन सा स्टेज में हो वो डिपेंड करता है. So depending upon your stage, you face your crisis. Initial stages और एडिक्शन में, ड्रग एडिक्शन में थोड़ा जल्दी हो जाता है, because the addictive nature of the substance is very high first, and उसका दाम ज्यादा है, you don't get it easily, so people take it, otherwise कुछ अलग नजर से देखता है ड्रग्स को. that's why उसका क्राइसिस थोड़ा जल्दी आ जाता है. that's the only difference. And okay, and the So, support system. Yeah, Taman. yes, Yeah, the I was going support to ask system. you that only, the Oh support yeah, part. yeah. The support part you need. See, support is, दोनों को एक ही support चाहिए. आप हॉस्पिटल, दिस इज अ डिजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिजीज. एडिक्शन इज अ डिजीज. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी ये मेडिकल साइंस भी मानता है.
एसयूडी बोलता है या एयूडी बोलता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इन सरल भाषा में अगर मैं बताऊंगा, इन ए वेरी इजी वर्ड एंड कॉमन वर्ड, इज एडिक्शन इज अ डिजीज, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज। तो ये बीमारी में अगर एक शुगर पेशेंट को जितना सपोर्ट चाहिए, उतना एक कैंसर पेशेंट को भी सपोर्ट चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक दैट आई कैन, Right. मैं उसको कम देखूंगा, उसको कम देखूंगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ problem both the persons, both the individual, be it an addict or an alcoholic, they are facing the same, more or less. It depends upon from what background you are coming. अगर कोई बहुत रिच फैमिली से आ रहा है, सपोज रिच फैमिली है, बहुत रिच आ रहा है, तो उसको फिनेंशियली उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, he can go back and he can relax and he can work on his Right. recovery. Right. So he doesn't have to jump into action for his job and all. Because हम लोग बोलते हैं कि after you go out of from treatment, minimum 6 to 7 months you need to rest. Rest in the sense not घर में बैठ जाओ, वैसा नहीं है. You need to do certain things like you need to go to attend meetings. You need to come to the center. You know जो follow up होता है. So वो सहूलियत, a rich guy can do that because उसको घर में he doesn't have to think about his bread and butter. But the person who is working and he runs the family, he cannot sit back for 6 months, right? He has to go and immediately come into action. So for those, so अलग-अलग support system, the support system अलग-अलग होता है. It differs from the background you are coming. It differs from the mentality of the person. So individual to individual, but different होता है support system. So the amount of care तो सबको उतना ही चाहिए. And the most important thing is, it's not the center which who plays the support system. We can only guide you to a certain extent. 6 महीना 1 साल. We cannot keep on calling each and every patient once they are discharged. You come to center, are you following the things which we have, taught you here? It's the family member who needs to jump in. ऐसा नहीं है कि 6 महीना this is a rehab center. No rehab center is a washing machine. I'm making this very clear for the audience. कोई भी रिहैब सेंटर या कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर, बी इट अ हॉस्पिटल, बी इट अ रिहैब सेंटर और एनीथिंग, इज नॉट अ वॉशिंग मशीन. यू जस्ट यहाँ से घुसा, हम लोग सर्फ एक्सेल से धोया, सूखने के लिए दे दिया, यू कम एंड यू आर अ न्यू पर्सन. नो, इट्स अ ह्यूमन माइंड वी आर डीलिंग विथ हियर, राइट? यहाँ पे जो सिखाया बहुत सा होता है, क्या घर वाला, हाँ मेरा बेटा ठीक हो गया, 6 महीना रहा तो ही है, क्यों ठीक नहीं हुआ? दिस इज नॉट सो इजी. दिस इज नॉट सो इजी कि रहा. आउट ऑफ एडिक्शन एक ऐसा बीमारी है. मेरा 50 अगर मेरा बैच है तो 50 में से सिर्फ एक लड़का ही रिकवरी में रहता है. एकदम मैं आपको ऑनेस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ. 1 या 2 मैक्स टू मैक्स, बिकॉज फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ सपोर्ट. क्योंकि बहुत जन जाता है कि वो क्या करता है कि शादी करा देता है. मत कराइए सब. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गार्जियंस डूइंग व्हाट दे डू. एक बार लड़का ट्रीटमेंट से आएगा, आई विल नो उसको शादी करा दूंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा. अरे इस प्रोसेस Correct. में यू Correct. आर या यू आर स्टैंडिंग, तुम्हारा बेटा का तो लाइफ खत्म है ही, तुम दूसरा एक लड़की का भी लाइफ खत्म कर रहे हो. यू आर बेटिंग ऑन समबडी Yes. एल्सेस लाइफ. फर्स्ट लेट हिम टेक हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी. वो तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो Correct. सीख ले पहले. देन ही कैन गो एंड टेक समवन एल्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी. वो खुद को ही रेस्पॉन्सिबल नहीं मानता है. एडिक्ट माइंड इज लाइक अ ब्रेन चाइल्ड माइंड. बच्चा जैसा होता है. तो यू नीड टू गिव टाइम. सपोर्ट तो दोनों को सेम चाहिए. फैमिली इज द मेन थिंग. फैमिली को एनी टाइम सर्वेलेंस में रखना है कि ऐसा भी नहीं थोड़ा टाइट कर दो. गिव हिम टाइम. तुरंत निकलने का साथ काम करो, काम करो, काम करो, नहीं होता ऐसा. पहले फर्स्ट हम लोग, मैं बोलता हूँ ना, माई रिकवरी शुड कम फर्स्ट सो दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ डज नॉट हैव टू कम लास्ट. पहले मेरा रिकवरी. टुडे आई एम रिकवरिंग इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. मैं खुद ठीक नहीं हूं तो मैं दूसरे को क्या Correct. ठीक करूंगा, राइट? दैट इट गोज लाइक दैट. Wow. So, Kaushik, you started your recovery. You came out of, you recovered well, and then you started a Joy Foundation. So, उसके पीछे का thought process क्या था behind starting this foundation?
And additional question, because I know this will somewhere come up in during the conversation, that what are the challenges that you face everyday Mhm. basis pay, and on operational level? Mhm. Okay. मैं जब सेंटर से बाहर आया, I was just I was told by my counselor that give time to your recovery, go to meeting, attend meetings, do some service job. तो मैं सेंटर विजिट करता था, मैं फेलोशिपिंग करता था. फेलोशिपिंग मीन्स व्हेन यू सिट along with some common, the same mindset of people, and you share your thought process. Because what an addict is thinking or feeling, a normal person cannot think or cannot feel. Right. Sympathy हो सकता है, but empathy नहीं होगा. It's like I cannot understand what a pregnant woman is going through. It only a pregnant woman can understand that pain. Another woman, right? I cannot understand. I can feel, I sympathetic towards that lady, but I won't understand that feeling. So that is a set of people who sit together, same common people who sit together. We call that fellowshipping, who share. So मैंने ये सब किया. So ऐसा नहीं था कि मैं I was मेरा गोल था कि I will open a rehab. ये एक्सीडेंटली हुआ एकदम. अगर मैं बताऊं तो मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मैं रिहैब खोलूंगा, ये करूंगा. मेरा तब नॉलेज बोलने से जीरो था. तो मेरा फेलोशिप था, उन्होंने ही बोला कि दे सजेस्टेड दैट कौशिका, लेट्स गो एंड स्टार्ट अ रिहैब, लेट्स डू इट इन अ प्रॉपर वे. हम लोग भी ठीक रहेंगे, हम लोग दो लड़का को ठीक रखेंगे. सो आफ्टर गिविंग इट अ थॉट, आई डिस्कस इट विद माय मदर. माय मॉम सेड ठीक है, करो. इफ यू वांट टू डू इट देन डू. इट्स अ वेरी नोबल जॉब. यू कैन, इफ यू वांट टू पुल इट थ्रू, यू डू. So once I started, once I 2019, 2020, okay, 2020 मैंने रिहैब शुरू किया. तब तक I did not know the challenges that were, I was about to face. It's a very hectic job. I won't say I don't love my job. I love my job, but it's a very hectic job. It's not. It's more or less like the job we are doing, like the जो पुलिस लोग करता है ना. We don't have any holidays. हम लोग कैलेंडर में कोई हॉलीडे नहीं है. कोई भी फेस्टिवल हो, वी हैव टू बी इन द सेंटर. हम लोग को सेंटर में, हम Correct. लोग का रिहैब सेंटर में. नॉट, मैं सिर्फ अपना बात नहीं कर रहा. ऑल द रिहैब ओनर्स, आई 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 मैं जितना जानता हूँ, दे सेक्रीफाइस अ लॉट. यू नो फैमिली टाइम नहीं है. अगर मैं हॉलीडे में कहीं जा रहा हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड मेरा एक ही चीज रहता है कि पेशेंट का कुछ हो गया क्या. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. दे थिंक दैट वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड. ऐसा सोच रहे हैं. अभी रिहैब का बारे में बहुत निगेटिव चीज भी होता है कि मनी मिंटिंग जगह है. ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट लाइक दैट. वी पीपल आर पुटिंग 24/7 into rehabilitation center, all the rehab owners. Right. हाँ, हम लोग कहीं शादी में जाते हैं, हम लोग कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं. वी हैव टू रीशेड्यूल एवरीथिंग. यू नो अगर मेरा फोन आ जाता है कहीं दूर में, सपोज रिसेंटली लास्ट 2023 को मेरा भैया का शादी हुआ. दापुन गॉट मैरिड. ओके, सो इन शिलोंग ही गॉट मैरिड. तो वहां पे भी मेरा फोन पे फोन आ रहा था. आई वॉज इज बेस्ट मैन, एंड मेरा फोन पे फोन आ रहा था कि दादा इसका रिचार्ज होने आया है, इसका ये होने आया है, आप कब आ रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज कीप्स ऑन प्लेइंग द बैक ऑफ योर माइंड. कोई ये नहीं है कि कैन नॉट लिव इन अ पीस. क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा. बिहू या कोई भी फेस्टिवल हो, Right. योर फैमिली मेंबर वांट्स यू होम, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. राइट. यू आर, उन लोग को समझना नहीं है. ये आपका जॉब है, ये आपको समझना पड़ेगा. इट्स हाउ यू आर बैलेंसिंग योर वर्क लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ एंड योर सोशल लाइफ. फेस्टिवल हो, पूरा प्लान करके रखा है कि आज घर में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या दुर्गा पूजा हो, हम लोग इस तारीख को बाहर निकलेंगे. दैट डे कुछ ऐसा काम आ जाएगा, यू नीड टू गो समवेयर एल्स. सो यू हैव टू ड्रॉप ऑल द प्लान्स. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर वाला फिर से एक टाइम नहीं देते, वो नहीं देते. सो ऑल दिस थिंग्स हैपन. दीज आर द मेजर चैलेंजेस. एंड या बार्गेनिंग होता है हम लोग का यहाँ पे कि इतना पैसा पैसा में रख दो, वो पैसा में रख दो. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सर्टेन एक्सपेंसेस, देयर आर सर्टेन things that we have to pay, which is not in our hands.
all these SOPs and all guidelines that we have to follow. सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक एडिक्ट को समझा के रखना लॉक एंड की के अंदर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यू नो यू कैनॉट, एक नॉर्मल इंसान को रख दीजिए तो आप घर के अंदर में, वो 1 से 2 दिन का बाद ही विल मेक तो टेंट्रम्स, आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू गो आउट। तो वो सिचुएशन में एक एडिक्ट को अंदर रखना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। यू नो इट्स नॉट लाइक दैट मैं कोई पेशेंट आया, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है ना, पेशेंट आया, इफ द पेशेंट वांट्स टू वॉक आउट, चलो भेज दो, वहां पे पकड़ा पकड़ी नहीं होगा, दे वोंट होल्ड यू बैक। बट यहाँ पे यू कैनॉट लेट देम गो आउट, True. you cannot let them go out. If you let them go out, they will go back home and they can do anything. You know, वो Correct. गुस्सा में, वो रिजेंटमेंट में घर वाला को मार सकता है, घर जला दे सकता है, और he can injure himself or herself. So you cannot टेंट्रम्स देख रहे हो मतलब चलो हम छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू कीप देम, जैसे भी करके वी हैव टू होल्ड देम बैक, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 डेढ़ महीना बाद his mindset is going to calm down, he is going to understand. पहला 10 15 दिन it's very no, what I say, very dangerous to handle. These are the challenges that we are facing, and घर ढूंढना प्रॉब्लम होता है, फॉर रिहैब अच्छा सेटअप मिलना प्रॉब्लम होता है। पीपल थिंक दैट दिस इज अ नो मेंटल असाइलम, नोबडी वांट्स टू रेंट यू, घर देना नहीं चाहता है। अगर घर देना देता भी है तो जो रेगुलर रेट में है, मार्केट में चल रहा है, उससे 10,000 15,000 ज्यादा बोल देगा। तो मैं बढ़ा के बोल सकता हूँ। तो ऑल दिस चैलेंजेस वी आर फेसिंग, और तो ये सब नॉर्मल बहुत है प्रॉब्लम्स रिहैब में। बैकलैश भी होता है समटाइम्स, यू नो। So, I mean, I can't even imagine. Like, this sounds very difficult. मतलब एक वो rehab center चलाना sounds very, very difficult. I mean, you are living it every day, so you know. When we were talking about all this, I was very curious that you meet so many people throughout the day, yeah, throughout your work life. Uh, what are some misconceptions about addiction that you hear, you encounter, and based on again those misconceptions, how can families better understand, yeah, better support someone who's really struggling with addiction? Misconceptions are like this: addiction is a problem. They, first of all, they don't understand that this is a disease. They think that this is a bad habit they are going through. You know, uh, they are going through a bad habit. ट्रीटमेंट में डाल दो, जो फर्स्ट टाइमर होता है ना। बट द पर्सन, ऐसा भी फैमिलीज है whose ward, whose son or daughter have been to rehab several times, say 5 10 times. So for them, the rehab concept becomes very clear to them, or the addiction concept becomes somewhat clear to them, somewhat clear to them. But जो न्यू कमर्स आता है ना, दे थिंक दैट दिस इज अ बैड हैबिट, रिहैब में रख दो, समझा बुझा के रख दो, सो दे विल, यू नो, वो छोड़ देगा। वो गलत संगत में चला गया, देयर फ्रेंड्स, यू नो, फ्रेंड्स नहीं करता है, देयर फ्रेंड्स डू नॉट, nobody can force you to, you know, take up something until and unless you do not have that willingness or curiosity to do that, you know. So ये सब मिसकंसेप्शन होता है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी ने गलत, यू नो, जादू कर दिया, ये सब भी सुनने को आता है। यू गो टू सम रिमोट प्लेसेस इन असम, दे थिंक दैट गलत साया आ गया, यू नो, किसी ने जादू टोना कर दिया, ये सब भी सुनाई देता है। या यू गो टू एनी काइंड ऑफ रिमोट विलेजेस इन असम, ये सब सुनाई आता है, सुनने को आता है। और वो लोग को लगता है कि ये चीज ऐसा है कि एक बार ट्रीटमेंट करो और ठीक हो जाता है। नहीं होता है। इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट द रिहैब इज टेलिंग यू, आस्किंग यू टू डू एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि घर वालों को लगता है कि रिहैब का डर दिखाएंगे लड़का को। सपोज एक लड़का नशा कर रहा है, तो उसको रिहैब में पिकअप करा दिया या रिहैब में लेके आ गया, 1 महीना बाद रखेगा, 2 महीना बाद रखेगा, और वो लोग को लगता है कि अभी हो गया पनिशमेंट। दे थिंक द रिहैबिलिटेशन इज अ सेंटर फॉर पनिशमेंट। नो, इट इज नॉट अ पनिशमेंट हाउस। यू कीप हिम हियर फॉर 1 2 months, वो यहाँ पे आके
एज आई टोल्ड यू, एडिक्शन का जो माइंडसेट होता है, दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स. So when you come to a rehab center, a boy comes to a rehab center for the first time, वो सबसे पहले निगेटिविटी लेने का कोशिश करेगा, बिकॉज यू मीट लॉट्स ऑफ पीपल हियर, यू नो. यहाँ पे Correct. फर्स्ट टाइमर मिलेगा आपको, सेवरल रिलैप्सेस मिलेगा. सो व्हाट दे डू, दे आर, एज आई टोल्ड यू, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स मोर निगेटिविटी. वो निगेटिव ग्रुप्स में ज्यादा जाए. एंड काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है कि मैं आज आपको काउंसलिंग कर रहा हूँ, कल भी काउंसलिंग करूंगा, परसों भी काउंसलिंग करूंगा. काउंसलिंग इज नॉट लाइक दैट. काउंसलिंग टेक्स टाइम. आज मैंने आपको काउंसलिंग किया, आफ्टर 3-4 days अगेन आई विल सिट विद यू. सो यू नीड टाइम. सो एक 2-3 महीना में एक पेशेंट का मैक्सिमम 4 या 5 काउंसलिंग होता है. बाकी ग्रुप सेशंस होता है, थेरेपीज होता है, वो अलग होता है. बट 1-to-1 काउंसलिंग 3-4 times होता है. बट द मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर विद दैट नेगेटिव, इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट. So they try to take those negative things very easily and they become sharp. फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, वो और शार्प हो जाता है. वो उसको समझ में आ जाता है कि रिहैब से कैसे बचना है. ओके, okay, कैसे बचना है, वो लोग ये सब चीज अडेप्ट कर लेता है. और घर वाला को लगता है कि चलो अभी उसका पनिशमेंट पीरियड ओवर, डर गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा. तो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, उन लोग को लेके चला जाता है. एंड दे थिंक मेरा बेटा ठीक हो गया. और बहुत सा लोग क्या करता है, बहुत सा एडिक्ट्स आर वेरी कन्वर्ट. No, addict people, they are very cunning. When they are in active using, they know the pulse, where to touch you, know when where to press you. घर वाले का कहाँ कौन सा नर्व में दबाना है उनको पता है. दे डू इमोशनल ब्लैकमेल. फर्स्ट, Right. मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं करेगा. दे डो वोंट डू सुसाइड. वो लोग सुसाइड करेगा ही नहीं. सुसाइड करता तो वो पहले ही वो लोग कर लेता. दे जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट यू नो. वो लोग मैनिपुलेट करके जो सुसाइड करता है. मैं जितना अभी तक मैंने भी काउंसलिंग थोड़ा सा पढ़ाई किया है, जिसका सुसाइडल थॉट्स आता है, टेंडेंसीज आता है, दे विल नेवर स्पीक आउट. द पीपल हु आर विद सुसाइडल टेंडेंसीज, दे विल जस्ट डू इट. दे विल नेवर शेयर अबाउट इट. दे विल नेवर टॉक अबाउट इट. दे विल, कभी आता है वो कर लेगा. सो दिस पीपल, दे ट्राई टू मैनिपुलेट देयर फैमिली मेंबर्स. लाइक आई, मैं सुसाइड कर लूंगा, घर में जाके मैं और नशा करूंगा. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड that you cannot help them. मुझे ये सामान लाके दो, मेरे को बाइक लाके दो, मेरे को अच्छा मोबाइल लाके दो, देन आई विल स्टॉप यूजिंग. ऐसे नहीं होता है. यू कैनॉट लीव देम टू स्टॉप एडिक्शन बाय करप्टिंग देम विथ मोर गिफ्ट्स. आप जितना उसका डिमांड फुलफिल करते रहोगे, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग देयर, इंक्रीजिंग देयर डिमांड्स डे बाय डे. एंड इन दैट प्रोसेस आपका कुछ नहीं हो रहा है. यू आर ठीक है, तो आप प्यार से कर रहे हो. You love your son, you love your daughter, very good. Every parents love their son and daughter, children. But that doesn't mean that your love becomes poison for them, for him, not for him or her. आप उसको इतना प्यार कर रहे हो, जो प्यार उसके लिए जहर बनते जा रहा. तो वहां पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लव, ना, सॉफ्ट लव एंड टफ लव. जब सॉफ्ट लव काम नहीं कर रहा, यू हैव टू बिकम टफ. You have to set certain boundaries. There should be a limit. कि एडिक्ट का लिमिट कभी खत्म नहीं होगा. या